बाबा बैकग्राउंड चेंज कर भाई, इनको अभी बैकग्राउंड से भी तकलीफ है, बैकग्राउंड चेंज कर। पूरी क्लास सीधी बैठेगी, जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून, जल्दी से एक प्यारी प्यारी स्माइल दो। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज मॉनेटरी आइटम, क्विकली। फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल इज व्हाट मॉनेटरी आइटम। व्हाट इज नॉन मॉनेटरी, which is not monetary. Okay, now what is the rule for foreign currency transaction? Initial recognition. All the foreign currency denominated transactions are recorded at rate existing on the date of transaction. Alternatively, which rate can be used? If there is no significant fluctuation in the exchange rate. Yes or no? At the year end, subsequent recognition. At the year end, what do you do for monetary item? For non-monetary item carried at historical cost, at the rate existing on the date of acquisition. For other items which are carried at fair value, closing rate or rate at which the fair value is determined, which is generally the year end. Okay, what is the last item? Foreign currency exchange difference, where it goes? P&L account. So when I talk about foreign currency operations are like you have got a complete business setup outside India, and that business segment or that business operation can be of two types. One is integral and the other one is non-integral. For integral, what is the trick I gave you? Same like foreign currency operation. Do you agree or not? And for non-integral, there are only two differences. There are only two differences. What is the difference number one? Whatever is carried at historical cost is also transferred at what rate? Closing rate. And what is carried at the foreign currency exchange difference is transferred to where? Foreign currency translation reserve. कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, इसका मतलब ये था कि नॉन इंटीग्रल में it should not hit my P&L. Is that okay? Did I give you any question homework? Okay. Which all questions were homework, beta? Question number 18. Yellow, blue, one sir. No, I'm not getting what are you exactly saying. 11.52. How many of you have done the homework? Okay. How many of you have not done? ये यार ये स्ट्रेंथ थोड़ी कम होनी चाहिए यार, मतलब ठीक है कम है, बट एज अ टीचर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। ये शिट, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो आप? ये मॉनिटरी आइटम वाला ये किया क्या आपने सॉल्व? कोशिश करिए। वाओ, दैट्स लवली। फिर और कौन सा क्वेश्चन था? ये नहीं कर रहा मैं सॉल्व। 17। अच्छा, कुमार लिमिटेड बोरोड $3 लाख विच विल बी रिपेड ऑन 30th June. सो बेटा जी, डेट ऑफ बोरिंग कौन सी तारीख है? 31st December 2020. विच रेट यू आर गोइंग टू यूज? आवाज नहीं आ रही यार। 44। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो ओरली? बैंक टू बोरिंग, so you'll say $3 lakh multiplied by 44. What is the next date? 31st March. मॉनेटरी आइटम है क्या? Where will you कितने की एंट्री करिए? आप बोरिंग को बढ़ाओगे या कम करोगे? क्या आप एंट्री करके बता सकते हो मुझे? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस टू बोरिंग 0.5 multiplied by 3 lakh 1,50,000 आएगा। Agreed? Okay, go ahead. Now what happened? It was subsequently settled at 44.75. आपके बुक्स में बोरिंग कितने रुपए में खड़ी है? Is it 44 or 44.5? So your borrowing would be reversed at 44.5. You will further transfer 25 paise to foreign currency exchange difference, and cash oblique bank will be 3 lakh multiplied by 44.75. Do you all appreciate? Foreign currency exchange difference for 31st March 21 was how much? आपने एंट्री करी होगी ना? 31st March 21 को कितना था फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस? सेकेंड एंट्री में कितना आया? अच्छा, 1,50,000 ही आया था ना, और दूसरे वाले केस में 75,000 आया होगा। से यस और नो? चेक मारो एंट्री, चेक चेक चेक। बैंक टू फॉरेन लोन, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस टू बोरिंग, and foreign loan foreign exchange difference to bank account. Do you all agree with these three entries? अच्छा, in case the borrowing was repaid before balance sheet date, then the entry would be as follows. ये point number 2 है क्या ये? If borrowing were repaid on 28th February, on which date the exchange rate was 44.20,
सो बेटा जी 28 फरवरी को पेमेंट किया तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बोरिंग का रीपेमेंट। यस और नो? बोरिंग कितने रुपए में खड़ी है अगर 28 फरवरी को पेमेंट कर रहे तो 44। कितना एक्स्ट्रा दे रहे, 20 पैसा। सो 3 लाख इंटू 0.20, हाउ मच इज दैट? 60,000. So my entry would be borrowing account debit 3 lakh into 44, foreign currency exchange difference 44, नहीं sorry 3 lakh into 0.20 and to cash bank. Say yes or no? And do you think so these are the same entry? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई तो कितने बच्चों ने होमवर्क किया बोला? गुड। बेटा तू एक बार आंसर लेके आएगा तेरा? यस 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 आप ही। डर मत यार, तू कर गया मेरे लिए उतना काफी है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि थ्योरी कैसे लिखते हैं रैंडमली बच्चे। आजा आजा आजा, ये माइक दे रहे इसको। क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, चलो एक बार पढ़ेंगे तुम आंसर आपका। Initial recognition that all the foreign transactions are recorded at a rate which existing at in a date of the transaction. Alternately, the average rate is used when there is a no significant fluctuation in the exchange rate. Subsequently, on the date of balance sheet date, the monetary items are transferred at closing rate. Non-monetary items are which are carried at fair value is closing rate. क्लोजिंग रेट की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो डेट ऑन विच फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड। स्टैंडर्ड कौन सी रेट बोलता है मैं बताता हूं, डेट ऑन विच फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड, ये स्टैंडर्ड के वर्ड्स है। और फेयर वैल्यू कब डिटरमाइन होती है? ईयर एंड। इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट डायरेक्टली कौन सा दिया, क्लोजिंग रेट। बट अगर आप थ्योरी में लिख रहे हो तो आपने क्या लिखना चाहिए, रेट एग्जिस्टिंग व्हेन द फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड। आगे बढ़ो। Which are carried at historical cost, the rate existing at a date of the acquisition. और फिर आपने एंट्री कर दी। इज दैट ओके? कैन वी क्लैप फॉर दिस गाय? आपको क्या लगता है 5 मार्क के लिए काफी है ये? यस, दिस इज सफिशिएंट। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था बेटू? कौन सा बेटू? ये तू जा सकता है नीचे, संतोष है कि नहीं है कि हो गया? अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? पेज नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर एक सेकंड रुक जा, 11 पॉइंट दैट वाज द टाइम पास क्वेश्चन। फिक्स्ड एसेट कौन सी रेट लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 7, फिक्स्ड एसेट कौन सी रेट पर लिया? डेट ऑफ एक्विजिशन। आप बता सकते हो मुझे कौन सी रेट है? फिक्स्ड एसेट के लिए 1/4/13 की रेट लेना है ना। सो 1/4/13 की रेट कौन सा है? 61। डेटर्स क्लोजिंग रेट कैन आई से 67। ओपनिंग स्टॉक की रेट कितनी लेंगे बेटा? 63। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ कितना लिखेंगे? एक्चुअल अमाउंट बता दो ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है? ये बोला नहीं था? हाँ 4,02,000। ठीक। सेल्स कौन सी रेट? एवरेज। बट बेटा एवरेज नहीं दिए तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2। सो 63 प्लस 67 डिवाइड बाय 2। 65 आ रहा है क्या? सो व्हाट रेट यू गोना टेक? 65। परचेसेस तो एवरेज रेट बताओ ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन नहीं किया मेजॉरिटी ने? कितने बच्चों ने नहीं किया है? ये होमवर्क नहीं था क्या? कोई बात नहीं, अभी तो बता दो, अभी तो हेल्प कर सकते हो ना सर। चलो नहीं किया, अभी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? गुड। 65 वेजेस, सैलरीज, कैश, क्लोजिंग रेट 67, रेमिटेंस टू एचओ 1,91,000 लिखेंगे क्या? हेड ऑफिस अकाउंट 4,90,000, क्रेडिटर्स विच रेट? क्लोजिंग रेट व्हाट? 67। और बेटा जी बोला क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच इज 700। डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम टू बी चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस
to be converted into Indian rupees. Exchange rate दिए. You want me to solve this question? या तुम इज्जत ही नहीं रखते मेरी? सॉल्व करूं या नहीं करूं? जिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया इसका एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? 20,200. यस, दैट्स मैचिंग. 20,200 है. एक करना है कि नहीं करना है सॉल्व? जल्दी से बोलो. हाँ, कितने बच्चों को चाहिए सॉल्व करोगे? कितने बच्चों को चाहिए सॉल्व करोगे? आई एम सॉरी नाउ, मैंने पूछा सर, मैंने पूछा, बट जब मेजोरिटी को नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? ठीक है, एक क्वेश्चन अभी मेरे सामने कर दिखाओगे मुझे? बेटा अपना रूल क्या था, मैं आपको याद दिला दूं. अपना रूल ये था कि हम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे. सो नाउ आई एम टारगेटिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन. मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर है आपको ब्लू का क्वेश्चन नंबर 4. वी आर देयर ऑन पेज नंबर 11.21. 11.21 क्वेश्चन नंबर 4, 11.21. अच्छा, आज के क्वेश्चन जो भी है मियां आप सॉल्व करने वाले हो, अपन एक बार पढ़ लेते इसको. एक्सप्लेन ब्रीफली accounting treatment needed in the following cases as per AS 11 as on 31st March 21. Trade receivable include amount receivable from Umesh rupees 5 lakh recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale. Transaction recorded at USD $1.58.5. Can I ask my intelligent class, will you make journal entry or you will give treatment? The reason is very simple. Debtors is already recorded, so there is no point in giving the journal entry. Copy that. Let me ask my dear students, how will you calculate the number of dollars? 5 lakh divide by. So calculate and tell me 5 lakh divided by 58.5. So you mean 8547.00 है? 8547. और इसको रिकॉर्ड किया था 58.5 पर. हो गया काम खत्म. Long term loan taken from a US company amounting to rupees 60 lakh. It was recorded at 1 USD is equal to 55.60. कितने डॉलर आपने बोरो किए थे? $107914 बोल दूं क्या? 0.6690 है, तो can I not call it as 107914? Now taking exchange rate prevailing on the date of transaction was how much? US dollar 1 was 61.20 as on 31st March 21. So बेटा जी ये हमारी पहली एंट्री में हमको मिलता है ट्रेड रिसीवेबल. से यस और नो? सो बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल, देखो आपकी एंट्री क्या थी? ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, बराबर है? मैं आपसे पूछता हूं, ट्रेड रिसीवेबल विल बी रिकॉर्डेड बीइंग अ मॉनेटरी आइटम एट व्हाट रेट? Closing rate. My trade receivable was recorded at 58.5, but now the rate is how much? 61.20. My trade receivable is increasing or decreasing? By how much? 2.7. So beta ji, what would be my entry? ट्रेड रिसीवेबल टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस. बट हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे. हमारा कल का फॉर्मेट था सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर डॉलर, एक्सचेंज रेट, अमाउंट. इज दैट ओके? कितने में रिकॉर्ड किया, कितने में रिपोर्ट होगा, और फिर एक बॉक्स आता है जिसके अंदर हम लिखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस. वो गेन है कि लॉस है? गेन है तो विल से दैट इट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट. लॉस है तो विल से इट विल बी ट्रांसफर्ड एज एन एक्सपेंस टू पी एंड एल अकाउंट. डू यू एग्री? तो पहले वाले केस में तो बेटा गेन है, और गेन है अपना कितना? 8547 मल्टीप्लाइड बाय 2.7. सो आप बोल रहे हो 23,077.9 आ रहा था. अप्रिशिएट दिस. अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या है? लोन है. लोन 55.60 था, कितने का हो गया? 61.20. Did my loan increase or decrease? By how much? Can I not say 61.5 minus 55.60? How much? 5.9.
मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी डॉलर्स बेटा जी? 107914। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? 5.6 तुम बोल रहे हो, तुम्हारी बात को क्या टालेंगे अभी? 107914 कितना आ रहा है बेटू जी? 6,04,318। दिस इज गेन और लॉस? लॉस। सुन लीजिए, इन केस ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, पुराना अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो था, पुराना it could be transferred to FCMITDA account also, where foreign currency monetary item translation difference account, which I'll talk about what last में 10 मिनट में कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो अगर इसमें फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट आया, आपने बिंदास्त होकर इग्नोर करना है। मैंने आपको ट्रीटमेंट क्या सिखाया कि इसका डिफरेंस कहां जाएगा? P&L, और हम अभी भी वही मानकर चलेंगे, डिफरेंस कहां जाएगा? P&L। डू यू ऑल कॉपी दैट? तो चेक कर लेते, क्या P&L अकाउंट में उतने गए क्या? 604317 एक्सचेंज डिफरेंस, यस और नो? और दूसरे वाले का डिफरेंस कितना है? 23,077। अच्छा, क्या हमको इसका इंग्लिश लिखने को आएगा क्या? क्या लिखेंगे बताओ? अच्छा, इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन का लिखना है या डायरेक्टली बैलेंस शीट का लिखेंगे? ऑल द मॉनेटरी आइटम विल बी ट्रांसफर्ड एट व्हाट? क्लोजिंग रेट, एंड एनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर? P&L। डू यू ऑल एग्री? और फिर हम वो हमारा फॉर्मेट बनाकर उसका ट्रीटमेंट दे देंगे। 5 मार्क के लिए सफिशिएंट होगा। सिर्फ इसमें एक लाइन अभी तक आपको आती नहीं, वो कौन सी है? FCMITDA अकाउंट। वो क्या है वो मैं समझा दूंगा। पॉइंट क्लियर? तो मुझे इसका आंसर अगर अभी लिख कर चाहिए तो लिख सकते हो आप। अच्छा, पूरा बच्चन दोगे या सिर्फ, क्योंकि ये बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए, तो हम क्या सिर्फ मॉनिटरी आइटम के बारे में बात खत्म करेंगे? चाहिए तुमको डिटेल में लिखना है तो लिख दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेटा जल्दी लिखना है प्लीज, मैं पूरे 9 मिनट नहीं देने वाला हूं। सर ऑरेंज वाले रसगुल्ले के पास ध्यान नहीं, बोलो क्या वो इशू है? सर इन लोगों की कॉपी चेक करते तो मुझे बहुत जेलसी होती है।
मुझे नहीं मालूम। यस यस, आप P&L में डालोगे। FCMITD अभी आपको पता ही नहीं है तो क्या करोगे? दोनों NTP में किसी में S11 का क्वेश्चन नहीं था, श्योर है? RTP में है क्या? देख, दीपांशु का हो गया लिखकर। वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वेरी गुड। 19 भूमि, किरण, हीत, साक्षी। गुड गुड गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ हाँ, नहीं 4 वाजता ना। हाँ बेटू, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वो बेटा, वेरी गुड। कूल। पूरे 9 मिनट लोगे इसको लिखने के लिए। गुड। ऑनलाइन वाले रसगुल्लो कोई है तो आंसर भेज दो। हरदिश, पहले मुझे एक बात बता बेटा, तुमने वो वीडियो देखा था क्या जो मैंने भेजा था? वो भेजा था, जो वो देखा कि नहीं देखा, पहले इतना बता दो मुझे। कर दूंगा मैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बेस्ट है।
तुम यार लेक्चर करते हो, क्या करते हो यार कुमकुम? मतलब कि गोबर खाकर बैठते हो क्लास में और तुम बोलते हो कि सर आप ऐसे बात क्यों करते हो? बोला FCMITD लास्ट में पढ़ाऊंगा बोल के, तो फिर वापस चालू हो जाते हो। आंसर देख देख कर सॉल्व करेगी तो ऐसे ही होना है। ए रसगुल्ला, ये देखो रिशु का आंसर है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है इसने, एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है, देख लेते हैं। As per AS11, the effect of changes in foreign exchange rate. Initially, these transactions are recorded on the rate of transaction. Recorded on the rate existing on the date of transaction, है ना? हाँ, ऐसा आना चाहिए. However, average rate may be taken if there is no significant fluctuation in the exchange rate. At the balance sheet, monetary are recorded at the closing rate and non-monetary items which are carried at face value, fair value, recorded at closing rate or the rate on which the fair value is determined, whereas those non-monetary items which are carried at historical cost are recorded at the rate on the date of transaction. एक बहुत की पॉइंट इसमें मिसिंग है, the foreign currency exchange difference will be transferred to where? P&L. ये तो लिखा ही नहीं, एक्चुअली आंसर में यही निकालना था. सो ट्रेड रिसीवेबल बेटा जी इन्होंने पहले डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया, रेट थी 58.5 तो 5 लाख पर था, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल था 8547 61.20. सो पॉजिटिव फ्लक्चुएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. अगर आप चाहो यहां पर तो आप एंट्री भी कर सकते हो, और एंट्री क्या हो सकती है? डेटर्स टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस. इज दैट ओके? चाहो तो इधर क्या कर सकते हो बेटा जी? एंट्री कर सकते हो. क्या हो जाएगी एंट्री? डेटर्स टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस. द अमाउंट इज 23076. अच्छा, बोरिंग बेटा जी इतनी है, और राजा बेटा जी 55.6 60 लाख है, और 61.20 हो गया, तो ये अमाउंट है. सो बेटा जी 604317 है. नेगेटिव फ्लक्चुएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. चाहो तो इधर एंट्री कर सकते हो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस टू बोरिंग. व्हाट इज द अमाउंट यू विल राइट डाउन? 6,04,317. इसके अंदर क्या मैंने FCMITD अकाउंट के बारे में कुछ बताया? नहीं. तो आपका आंसर यही है, और ये P&L अकाउंट में जाएगा. कोई बात नहीं कुमकुम. ए भाई साहब, ये हो गया क्या? सो मुझे बताओ कि इस आंसर को देखने के बाद में आपको क्या लगता है किस चीज पर फोकस करना चाहिए एक बच्चे ने? थ्योरी में भी अगर तुम रटी रटाई थ्योरी करोगे नहीं होगी. आपने क्या करना चाहिए? स्टैंडर्ड का रिकॉग्निशन प्रिंसिपल होंगे हर एक स्टैंडर्ड में, या डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स होंगे. आपने वो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एक बार लिख कर निकाल देना साइड में, या उसका ऑडियो बनाकर ले लेना, और बात खत्म होगी वही लिखना. और ध्यान से सुनो, आप कुछ शब्द खा रहे हो, जैसे उस बच्चे की भी मैंने आंसर देखा तो कुछ शब्द खा रहे हैं. एएस में शब्द खाकर नहीं चलेगा, आपको शब्द लिखने पड़ेंगे. इज दैट ओके? आप आपकी भाषा में लिखो, उसमें कोई एतराज नहीं है, बट शब्द सारे लिखने पड़ेंगे. क्या ये बात भेजे में गई? एक और क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, चेक करते कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आर वी रेडी? अभी तो कौन सा हुआ बेटू जी? 4th हुआ था ना. 8th क्वेश्चन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बार एक छोरे के लिए ताली तो बजा दो. तो बेटा लेक्चर देख लेना, अगर तूने क्लास जल्दी छोड़ी थी तो एक बार लेक्चर देख ले वापस. वो क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेक्चर क्यों नहीं देख रहे हो आप? आर वी रेडी टू रीड इट? बेटा पहले क्या करना, मेंटली आंसर बनाना और मुझे बताना, फिर हम आगे जाएंगे. ठीक है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस. इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. हाईलाइट द वर्ड इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. अभी मेंटली एक बार ट्रीटमेंट विजुअलाइज कर लो, क्या क्या ट्रीटमेंट है. इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच में या इंटीग्रल ऑपरेशन में हम क्या क्या करते हैं? सारे आइटम कौन से इस पर होते हैं? जो मॉनिटरी आइटम होंगे वो क्लोजिंग रेट पर जाएंगे. जो नॉन मॉनिटरी है विच आर कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो कहां पर जाएगा? डेट ऑफ एक्विजिशन वाली रेट. बाकी के क्लोजिंग रेट. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस P&L अकाउंट. और इनिशियल रिकॉग्निशन द रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और यू कैन यूज व्हाट? एवरेज रेट. क्या यहां तक स्टैंडर्ड हमें बोल रहा था, हमें क्लियर है? गुड. अब आगे क्या बोला? द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ प्रॉफिट इज कैरिड टू अदर लाइबिलिटी अकाउंट एंड द लॉस इफ एनी चार्ज टू रेवेन्यू कमेंट. इन्होंने क्या बोला? ये आंसर मत दे, आंसर मत दे.
क्या लिखा है? द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ व्हाट? प्रॉफिट इज कैरिड वेयर? अदर लाइबिलिटीज अकाउंट एंड लॉस इफ एनी चार्ज टू व्हाट? रेवेन्यू. ये सही है कि गलत है? कहां जाना चाहिए? ठीक है, पी एंड एल. अब मैं आपको पूछता हूं, इसको बोला है कमेंट, तो आप कैसे लिखेंगे इस आंसर का? पहले हम ये लिख सकते हैं क्या? द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फिर हम लिखेंगे रीजनिंग एज पर AS 11. फिर हम हमारी पूरी थ्योरी लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे हेंस द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस वेदर प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट एज इनकम और लॉस. यस और नो? एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस. कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दोनों साथ में लिखेंगे. लेट्स गो. अच्छा, इसका पीछे का पन्ना पलट दे तो तुम्हारी तो तुम्हारी बच जाएगी. और तुम अगर इसको याद करके लिखने की कोशिश करोगे तो बढ़ जाएगी. और जो बच्चा लेक्चर नहीं करेगा और इस आंसर को देखकर आंसर लिखने की कोशिश करेगा, 100% फटेगी. तो सर ये आंसर जो आपने पीछे लिखा वो गलत है कि सही है? 100% सही है, बट उतनी टेक्निकल लैंग्वेज आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. अरे शिट, आई जस्ट फॉरगॉट टू गेट दैट. मैं कुछ AIRs के पेपर निकाले मैंने, जिसके अंदर उन्होंने AS कैसे लिखे है, तो मैं आपको भाषा दिखाऊंगा उसी AS में कैसी लिखी हुई है और उन्होंने कैसे लिखा है और उनको कैसे मार्क्स मिले. तो उससे आपको पता चलेगा कि पहले एक्सपेक्टेशन राइट सेट करो. आप रट्टा मारकर AS के आंसर नहीं लिख पाओगे. और तुमको भरोसा नहीं, किसी भी CA को एक क्वेश्चन पूछकर देख लेना, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा सेम टू सेम लाइन. तो आपको हर स्टैंडर्ड में जो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है ना, वो अपनी भाषा में लिखकर रख देना है और बात खत्म. जब भी रिकॉग्निशन का क्वेश्चन आएगा हमें वही लाइन रिप्रोड्यूस करनी पड़ेगी. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारी चीज ये है कि अभी तक हमने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है. हमें मुश्किल से AS 11 का एक पन्ना भर तक का कंटेंट पता है और एक पन्ने भर के कंटेंट में हम सारा आंसर लिख रहे हैं. यस और नो? और एक्चुअली टेक्निकली ऐसा ही होएगा हर एक स्टैंडर्ड में. चले फिर शुरू करें. सो लिखते क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लिखते एज पर नहीं, द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और फॉल्स. अब हम लिखेंगे रीजंस. एज पर AS 11, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है. all the foreign currency denominated transaction denominated transactions are recorded at rate existing on the date of ट्रांजैक्शन. हैप्पी? ये हुआ पॉइंट नंबर A. नाउ आई विल राइट डाउन पॉइंट नंबर B. राइट? ये इसके अंदर और एक पॉइंट लिखना था ना. अल्टरनेटिवली विच रेट कैन बी यूज्ड? अल्टरनेटिवली एवरेज रेट कैन बी यूज्ड if there is no significant fluctuation in exchange rate. आगे पॉइंट नंबर B. At the balance sheet date, all monetary items are transferred at
closing rate existing on balance sheet date, on balance sheet date, all non-monetary items carried at fair value, rate on the date existing, rate on the date when fair value is determined. How? दूसरा वाला है carried at historical cost, rate existing on the date of acquisition. C point, this is really very important. Any resultant exchange difference will be transferred to P&L account as income or P&L account as expense, as the case may be. ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन, hence exchange difference is transferred to where? Transferred to P&L account. Yes or no? P&L account. It is not to be transferred to balance sheet as other current liability. बराबर है? अब अपने आंसर को देख लो, सुंदर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा, मेरे तो पूरा सुंदर लग रहा है. पॉइंट वाइज आंसर लिखने का. जिन जिन बच्चों को टाइम मिले घर पर जाके पढ़ लेना इसका आंसर भी. थोड़ा सा ऊपर ले लूं. हाँ बेटा, फोटो ही लेगा ना. बहुत शॉर्टकट्स है, कल बताया था मैंने, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है. ये नहीं कि बाकी के बच्चे लिख रहे मैं भी लिखने की कोशिश कर लूं. नहीं, कब लिखेगा? हाँ, वहां से छोड़ दिया तूने. बाप में इतना फास्ट लिखता हूं. हटी के लिख लो, छाप लो. तुम तो है ना हर चीज के लिए रोने धोने के लिए बैठे होता है यार. ये आरटीपी का क्वेश्चन निकाला क्या पिल्लू? ये एड़ा बिड़ा है क्या? आरटीपी में कैसे नहीं रहता? डोस क्या है क्या? बाबा एक्विजिशन की स्पेलिंग, अरे यार मत करना यार प्लीज. अब ठीक है.
सर आप फास्ट लिखते हो और मेरी हैंडराइटिंग का सही में मैं फास्ट लिखता हूं. Why I feel so proud about myself. Oh, you don't know psychological reason for it. The one who writes fast thinks fast. ये हमेशा देख लेना. The one who writes slow will think slow. And I can give you a proof of it. In the exam, when you are writing, your thoughts will always move faster and your speed of handwriting will be slower. So, अगर आपको मैच करना है आपके थॉट्स को और एक्शन को, तो जो लोग फास्ट लिखते हैं वो बहुत अच्छा प्लस प्लस साइन है उनके लिए. ये मैटर ऑफ फैक्ट है. You should write fast. When I say write fast, legible है, पढ़ सकते हैं ऐसा. सर क्या सर हम कुछ अच्छा लेकर पैदा हुए हैं कि नहीं हुए? क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा कि भाई मुझे नहीं देखने की है, तू देख. और तू क्या क्या देखते रहता भगवान जाने, खुद को छोड़कर बाकी इधर उधर मुंह मारते रहे. क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ. 7वें पर मैं क्यों देखूं बता मुझे सही में. क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है गुड़िया 41. क्वेश्चन नंबर 7. सर जब पेपर और पेन एप्पल का हो तो नोटबुक वाले गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते. अरे कोई बात नहीं, मुझे बुक लाके दे दो, मैं वैसे लिख लूंगा. यार तुम क्या बात कर रहे हो यार. तुमको कल एक इंस्ट्रूमेंट लाके दिखाऊंगा, उस पर लिख कर बताओ मेरे को, मैं उसमें तुमको स्पीड से लिख कर दिखा दूंगा. ऐसे जलील वाहियात लोग हो तुम. क्वेश्चन नंबर 7. मुझे पता नहीं यार तुम कौन से कैसे बच्चे हो. मुझे सही में घंटा फर्क नहीं पड़ता इसका. यू से एप्पल एप्पल मैं तो यूज भी नहीं करता इसके बाद में, यहां से जाने के बाद आई डोंट इवन सी टू इट. ये एप्पल का मोबाइल में घंटा, इसमें 2-3 फीचर्स यूज करता है. एक व्हाट्सएप, एक सेंड मैसेजेस, एक कॉल एंड रिसीव कॉल, हाँ, और एक ड्रॉप. और बाकी मेरे को इसके फीचर्स पता नहीं क्या क्या रहता है. घंटा क्या है मेरा, लेना देना कोई. पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 7. लेके आरटीपी इधर. नहीं रहा तो तू जीत गया, तो ला गया ना इधर आरटीपी. मेरे को देखने का बेटा. अरे मेरे को पता नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने की और इच्छा हो रही है मुझे, देखने का कि बच्चों को आता है कि नहीं आता है. हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं. कमीने बच्चों ये क्वेश्चन देख लो 7th वाला और मेरे आंखों के सामने सॉल्व करके बताओ. और मैं नहीं लेके आया हूं, मॉड्यूल का है. कौन से क्वेश्चन पेपर है? 100 मार्क का और 2S बना, वो भी 2S पूरे उसमें. एक सेकंड. सात 8 AS बाकी अपने जो टॉपिक हुए वो ही पूरे. हाँ पाजी. गुड्स परचेस्ड ऑन 1119 फॉर $15,000 एट द रेट ऑफ 75. एक्सचेंज रेट 31 मार्च 19 को 74 है. एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट 7/7/2019 73 है. पहले बताओ कर पाओगे क्या ये? बस फिर ये होमवर्क ले लो. हाँ तेरा एग्जाम क्वेश्चन कौन सा है भाई, भेज. नहीं कर पाओगे होमवर्क में? नहीं रे, गेम नहीं खेलते बैठेंगे अभी. अभी चलो सुनते हैं, अभी अगला काम करते हैं. आईफोन लेने के बाद में सभी लोग यही बोलते हैं, तुम्हारी माया तुम जानो भाई. मेरे को नहीं समझ पड़ती तुम्हारी बातें, मुझे बातें नहीं समझ पड़ती. बट इतना जरूर बता सकता हूं, जब तक आईफोन या एप्पल इनकी इज्जत रहेगी तब तक जिंदगी के तो नजदीक नहीं आ सकते. ये मैं लिख कर दे सकता हूं. ये साधन है, इसको एंजॉय करने का सिर्फ. लेकिन ना बे, इसको सिर्फ एंजॉय करने का, उसके आगे इसका क्या रोल है? पहले खुद की इज्जत कर लो थोड़ी सी. एप्पल से थोड़ी ना इज्जत होती तुम्हारी. कौन सा क्वेश्चन है बाबू? कहां है क्वेश्चन? बट एएस का क्वेश्चन तो पहला वाला होता है. नहीं ये नहीं कर पाएंगे, फॉरवर्ड है ना. अभी ये पढ़ाएंगे, सुनो अभी. ठीक है, ये पेपर मेरे सामने अभी आया है. ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन आपसे करवाने वाला हूं और मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैंने सिर्फ इतना देखा फॉरवर्ड का है. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम तुम्हारी इज्जत करना चालू करोगे. हर रोज हम थोड़ी थोड़ी करेंगे.
ज्यादा इज्जत नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी इज्जत करनी है, बट पहले खुद के ऊपर रिस्पेक्ट आना जरूरी है, तभी वो आदमी कुछ कमेंडेबल चीज अचीव कर सकता है। ये जिंदगी की नियति है ना। ठीक है, अभी सुनते हैं बेटा जी कौन सा वाला लॉजिक है। मैं आपको आज समझाने वाला हूं हेजिंग क्या होता है। तो पहले रिस्क समझेंगे और फिर समझेंगे हेजिंग क्या होती है। बेटा लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज हेज। हैव यू सीन सम स्पोर्ट्स वेयर दे प्ले द स्पोर्ट्स ऑफ तलवारबाजी, और फिर खुद को प्रोटेक्ट करते, किसके थ्रू प्रोटेक्ट करते? ढाल, शील्ड, है ना। तो वो शील्ड होती है, यू हेज योरसेल्फ, यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू आर प्लेइंग द गेम, you are into the risk, but that is a shield through which you protect yourself. So beta ji, hedging is also protecting yourself from the losses. So what is a hedging? Let me tell you. होता क्या है कि आज के तारीख में पूरा वर्ल्ड एक छोटे सी जगह जैसा बन गया है। मतलब आज आपको यूएस में बात करना है, यूएस में कोई ट्रांजैक्शन करना है, अलीबाबा इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एट द चीपेस्ट प्राइस। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर अबाउट अलीबाबा। ठीक है, जैकमा, अभी तो ठीक है चाइना ने उसकी बजा दी है, बट पहले एक जमाने में अलीबाबा वाज टू वेरी पॉपुलर। सो बोलने का तात्पर्य यह था कि अगर आपको हेजिंग समझना है तो पहले यह समझो कि आपका एक्सपोजर होना चाहिए रिस्क में। मतलब पहले आप गेम में उतरोगे, गेम में मतलब तलवारबाजी का गेम, समझेगे नहीं। सो बेटा जी तलवारबाजी का गेम चल रहा है, उसके अंदर आप उतरे। अब यहां पर कौन सा है? आपके पास फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एक्सपोजर होना चाहिए। डिनोमिनेटेड एक्सपोजर इज देयर। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सो लेट मी टेल यू, ऑन 1/1/2024 I purchased goods from USA, purchases account debit, to I'll write down party account. Okay, I'll say I have bought $1 lakh into 80 and $1 lakh into 80, कितने रुपए का माल मैंने खरीद लिया? 80 लाख का माल खरीद लिया। Yes or no? Now first thing you need to understand that this entry gives you the exposure to foreign currency. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एंट्री आपको फॉरेन करेंसी में एक्सपोजर दे रही है। मैंने फर्स्ट लाइन क्या है? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एक्सपोजर इज देयर। आपने बोरिंग करी, आपने माल सेल किया, किसी भी सूरत में जो आप एंट्री कर रहे हो, दैट एंट्री इज सब्जेक्ट टू फॉरेन करेंसी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब जब मैं बोल रहा हूं कि आप रिस्क पे हो, तो कौन सी रिस्क है वो तो समझेंगे, बट स्टेप नंबर 1 उसका क्या है कि कोई तो एक ट्रांजैक्शन आपकी हुई है जिसके अंदर यू आर एक्सपोज्ड टू foreign currency exchange rate. Now you are supposed to pay on 30th June, 30 जून 2024 को आपको पेमेंट करना है। Now there are two things which can happen with you. Point 1, आपकी रेट ऊपर चली गई। जो 80 रुपीज की रेट है वो रेट चली गई है बेटा जी 85। Can you feel the risk? Are you having a loss? बेटा एक व्यवसाय करने वाला आदमी फंस जाता है इन चीजों में। एक व्यवसाय करने वाला आदमी, उसकी मार्जिन पहले ही कम रहती है। 80 का माल वो लाकर बेचेगा फॉर एग्जांपल 85 में, और इधर क्या हुआ कि 80 का माल तो मंगाया और इमीडिएटली 6 महीने बाद पेमेंट करना, तो उसने में रेट भागकर कहां पहुंच गई? 85। तो बेटा एक व्यवसाय जो करता है व्यक्ति, उसने क्या करना चाहिए? व्यवसाय करना चाहिए या एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रही है उसकी वजह से अपने P&L की बजानी चाहिए? वो धंधे से प्रॉफिट कमाता है, हाँ है ना। सो राजा बेटा जी यहां पर पहले समझो कि उसकी रिस्क है। रिस्क क्या है कि रेट ऊपर जा सकती है और रेट नीचे जा सकती है, इन दोनों में ही उसको दिलचस्पी नहीं है। इंफोसिस को अगर आप बोलोगे तो उनके मेजॉरिटी क्लाइंट सारे फॉरेन में हैं, तो फॉरेन में है तो क्या होगा? उनका एक्सपोजर किसमें? डॉलर्स में। अगर मान लो उनकी जैसे आनंद भांगड़िया का कोई करेंसी डॉलर में है ही नहीं, एंट्री है ही नहीं, अब रेट ऊपर जा रही नीचे जा रही, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम, बट देन इंफोसिस विल हैव अ प्रॉब्लम, टीसीएस विल हैव अ प्रॉब्लम, कॉग्निजेंट विल हैव अ प्रॉब्लम, एनी एंटिटी व्हिच इज डीलिंग इन फॉरेन करेंसी विल हैव अ प्रॉब्लम। यस और नो? So now what they can do is they can enter into a contract with a bank. So bank is a central place जहां पर क्या होता है कि दोनों लोग आते हैं। एक आदमी जिसने परचेस किया हुआ है तो उसकी रिस्क क्या है कि रेट ऊपर बढ़ गई तो, और एक दूसरा आदमी जिसने सेल किया हुआ है भारत से। अब
ऐसे कैसे कंप्लीट होगा सर सिलेबस? ऐसे कैसे होगा? तुम्हें समझ में नहीं आता? लाइट बंद करके चालू करने में क्या मजा आता है? करेगा चालू इसको? प्रोजेक्टर चालू करो। और इस क्लास में अकेला तू ही है क्या अभी? तुम इतने डर क्यों जाते हो? चिल, इट्स ओके। इधर के एक गोटे है ना, ऐसे चमन है, इतनी बार लैग लिखते हैं, पता नहीं क्या सड़ाएंगे। जो भी मिलेगा ना उसको इतना पकड़ पकड़ के सड़ाएंगे ना। ये देखो, ये लैग दिख रहे हो? मतलब कितना अंदर से पका हुआ होगा ये। नहीं, पर पका हुआ कितना है अंदर से, मतलब ऐसा कितना फ्रस्ट्रेशन है। बेस्ट है। हो गया चालू पीसी? चालू है क्या? ठीक है, प्रोजेक्टर कर दो चालू, फिर करेंगे हम आगे। अभी एसी नहीं चलेगा क्या? हो जाए यार प्रोजेक्टर चालू। थोड़ा सा है ना पानी मारा करो खुद पर। क्या ऐसे मुरझा जाते हो थोड़ा सा? जैसे सब्जी पर नहीं मारते क्या? पानी मार कर रखा करो। इधर ये मुरझाया हुआ आदमी, तेरे को बोला नहीं मैं कुछ, इधर हुक्का मार कर रहा है ना तो अभी। हाँ, तू ही ऐसी शक्ल लेके कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है यार? तू ही बोल रहा हूं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता था ऐसी शक्ल वाला आदमी कोई गंदा काम नहीं करता होगा, और तू ऐसा थकेला निकला है एड़े। ओके सर, आपके लेक्चर में ही ऐसा क्यों होता है? कैसे जलील लोग हो यार। सुन लो, जब जब ये लेक्चर मेरा होता है तब आपका भी तो होता है, समझे? मैं बोलता हूं इसके पहले बैच में नहीं हो रहा था, इसी बैच में हो रहा। तो चलो सुनते जाओ। महाराणी, हाँ वेरी गुड, दमलेली महाराणी ऐका इकडे। सो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बैंक एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास दो लोग पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो बोलता है कि हे बैंक, मैंने कुछ परचेज किया है, मुझे 6 महीने बाद डॉलर लगेंगे एंड आई वांट $1,00,000। क्योंकि इस आदमी को रिस्क है कि भाई साहब इसकी रेट अगर ऊपर चली गई तो पैसा एक्स्ट्रा लाऊंगा कहां से? यस और नो? उसका व्यवसाय बेटा जी परचेज सेल का है। अब इसमें मसला क्या हो जाएगा? जैसे ही रेट ऊपर जाएगी, एज एंड व्हेन द रेट विल क्लाइंब अप, ही विल बी कॉट अप देयर। पॉइंट 1 क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या होता है सुनिए। एक दूसरा व्यक्ति भी है जैसे इन्फोसिस वगैरह, उन्होंने सेल किए प्रोडक्ट्स अब्रॉड में, और जब उन्होंने सेल किया था तब रेट 80 है, बट उनको पैसा मिलने वाला 6 महीने बाद। अब इस आदमी को रिस्क है कि रेट नीचे चली गई तो वॉर हो गया और उसके बाद में रेट नीचे चली गई तो आज 80 रुपीज मिलने वाले थे, बट आगे चलकर रेट कितनी मिलेगी? मे बी 74, 75। नाउ देयर इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। सो दोनों लोगों की अपनी अपनी रिस्क है। रिस्क क्या क्या पहले ये समझ लेते हैं। पहले तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी एक्सपोजर होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर होता है? एक्सपोजर कैसे होता है कि आपका या तो रिसीवेबल या तो पेएबल इन फॉरेन करेंसी होना चाहिए। अगर रिसीवेबल या पेएबल फॉरेन करेंसी में है तभी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, तभी आप उसको क्या कर सकते हो? हेज कर सकते हो। अगर आप गेम में उतरे ही नहीं तो कैसा रिस्क और कैसा क्या? ढाल लेकर मतलब क्या? गेम में तो उतरना पड़ेगा ना लड़ाई करने के लिए। सो इधर लड़ाई के पहले क्या स्टेप है? रूल कि यू शुड हैव ईदर रिसीवेबल और पेएबल इन फॉरेन करेंसी। पहले ये बता दो, ये समझा कि नहीं समझा? सो गेम का रूल नंबर 1 क्या है? यू शुड हैव ईदर रिसीवेबल और पेएबल इन डॉलर और इन फॉरेन करेंसी। अब ये है, अब रिस्क क्या है कि रेट कैन ईदर गो अप और रेट कैन ईदर कम डाउन। नाउ दैट इज अ रिस्क। सो द वन हु परचेसेस, उसके लिए रिस्क है रेट ऊपर चली गई तो। द वन हु सेल्स, उसके लिए रिस्क है कि अगर रेट नीचे चली गई। तो ये दोनों लोग किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। और बैंक के पास नेगोशिएशन की जाती है। बैंक को बोला जाता है, देख हे बैंक, आज की तारीख है 1/1/24, ओके, और मुझे 30 जून को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। एग्रीड?
मुझे डॉलर चाहिए 1,00,000। अब बेटा जी टुडे वी आर ऑन दिस डेट, यस और नो, एंड टुडे वी आर डिसाइडिंग द रेट फॉर आगे, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आज के तारीख में हम कौन सी रेट डिसाइड कर रहे हैं? फ्यूचर की। तो इसको कौन सी रेट बोलते हैं बेटा जी? हम फॉरवर्ड रेट। एग्रीड? तो बेटा जी बैंक बोलती है आज की रेट 80 है, बट मैं आपको दे दूंगी एट द रेट ऑफ 81। एग्रीड? बैंक बोलती है आज की रेट क्या है, इसको जो 80 है इसको क्या बोलेंगे? स्पॉट रेट। और आगे चलकर यही रेट कितनी में दे देंगे बोल रहे वो? 81। तो 81 इज व्हाट? फॉरवर्ड रेट। ये समझ में आया? यस। किसी ने फ्यूचर्स ऑप्शंस में डील किया? फ्यूचर्स इज ऑल्सो फ्यूचर का रेट। 3 महीने बाद एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने। क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेरे को एक बार का तो कंफ्यूजन हो गया, मतलब इधर दिख रहा क्या नहीं दिख रहा है, जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर। अच्छा, सो यू फाउंड आउट द डिफरेंस। ओ भाई सुन रहे यार, इस प्रोजेक्टर पर दिख रहा है, उस पर नहीं दिख रहा है, उसमें लैग आ रहा है। यार मत जान खाओ यार, मैं प्लीज यार बहुत तैयारी करके आया हूं इसके लिए, प्लीज एक बार समझाने दो। तुझे आयला पहला लाइट जाएगी, फिर प्रोजेक्टर जान खा रहा है, पता नहीं मेरे को है ना, दिल बैठता जा रहा है। वो भाई को है ना भाला डाल पीछे से। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये पूछ रहा हूं, पहले एक्सपोजर होना चाहिए। एक्सपोजर होने के बाद में हम बैंक को जाके क्या बोलेंगे कि हे बैंक, आई वांट डॉलर्स 1 लाख आफ्टर व्हाट डेट? 6 मंथ्स। 30 जून को मुझे 1 लाख डॉलर चाहिए, आप कितने रुपए में दोगे? 81। बैंक रेडी हो जाती है। तो बैंक ने इससे कितने रुपए प्रीमियम चार्ज किया? 1 रुपये। अब मेरा बच्चा सोच रहा है कि सर फिर बैंक का क्या फायदा? बैंक बहुत होशियार है, बैंक के पास दोनों लोग है ना, एक बायर है और एक कस्टमर है। सो क्या होता है कि जो सेल किया था, याद है कि एक और दूसरा व्यक्ति, उसको 1 लाख डॉलर कन्वर्ट कराने थे, इसको परचेस करना है। उस आदमी को क्या है, जो दूसरा आदमी था, उसको क्या करना है? उसके पास डॉलर आएंगे फॉरेन से। उसकी रिस्क क्या थी उस समय कि आज की रेट 80 है, कल को जाके वो कितनी हो गई? 75, 74। सो आई एम इनटू अ प्रॉब्लम, यस और नो? तो वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि मैं 6 महीने बाद मैं आपको कितने डॉलर दूंगा? 1 लाख डॉलर दूंगा, आप मुझे कितनी रेट दोगे? तो बैंक बोलती है आज कितनी रेट चल रही? 80। मैं आपको दे दूंगी अराउंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 79.5। मतलब 50 पैसे उससे कमाए, 1 रुपया इससे कमाया, यस और नो? सो बेटा बैंक के काम करती रहती है, बट अपने को भाड़ में जाने दो। तुमको यह समझ में आए कि फॉरवर्ड रेट क्या होती है? मुझे नहीं समझा, व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट? यू डिसाइड टुडे एट व्हाट रेट you are going to exchange the foreign currency. So this is just a contract. exchange अभी नहीं हो रहा। exchange कब होगा? 6 महीने बाद। कब होगा exchange? किसी को डाउट? तो ये दोनों लोग अपनी अपनी चीजों को ऑनर करेंगे, ऑनर करेंगे दोनों अपनी अपनी चीजों को, कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ना पैसा कोई आज दे रहा है ना कुछ है, आज इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेंगे। इसलिए क्या होता है, बैंक इसको बोलती है एक काम कर, 1 रुपया इंटू 1 लाख, इसको बोलते प्रीमियम। 80 रुपीज स्पॉट रेट है, हम उससे कितने मांग रहे हैं? 81। तो इसका नुकसान कितने का हुआ मुझे बता दो? 1 रुपये का नुकसान हुआ। अगर आज के ट्रांजैक्शन में देखे तो कितने में रिकॉर्ड होता? 80 में। बट अब उसने एग्री कितने में किया है? 81। वो बोला ठीक है ना यार, थोड़ा बहुत 1 रुपया एक्स्ट्रा देकर बात खत्म। तो 1 रुपीज ही हैज पेड एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड। क्या बोलते बेटा जी इसको? बेटा ये प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों हो सकता है। प्रीमियम तब होगा जब आपका लॉस हो रहा है, इन सिंपल भाषा। डिस्काउंट तब होगा जब आपकी इनकम है। मतलब अगर मान लो आज की रेट है 80, बैंक बोलेगी 6 महीने बाद आपको 79 में दे दूंगी, 79.5 में दे दूंगी डॉलर्स। तो बेटा जी उस केस में क्या? द डॉलर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट इन फॉरवर्ड रेट। से यस और नो? गुड। मुझे नहीं समझा क्या बोल रहे थे पहले। व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट? फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट में क्या फर्क है? तो पहले फॉरवर्ड रेट क्या है? इट इज अ रेट डिसाइडेड टुडे फॉर ट्रांजैक्शन which is gonna be conducted today or in future? In future. And today's rate is what? The difference between spot rate and forward rate can be either premium or it can be either loss. इसके लिए common sense कैसे लगाना?
लॉस रहा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। और अगर इनकम रही, गेन रहा तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत बहुत रेयरली आएगा, तो आएगा प्रीमियम। कितने का प्रीमियम था बेटा जी? 1 रुपी। कितने हमारे डॉलर थे? 1 लाख। 1 लाख इंटू 1 कितना हुआ प्रीमियम? 1 लाख। नाउ AS11 यहां से पिक्चर में आ रहा है। एनी प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग इज अमोर्टाइज्ड ओवर P&L अकाउंट ओवर द पीरियड ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना था? टेन्योर 6 महीना। 1 लाख रुपए का नुकसान आप कितने महीनों में डाल दोगे? 6 महीने में उसको अमोर्टाइज कर दोगे। यस और नो? तो जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1/1/24 को, और हमारा ये कब है? 30 जून को। बीच में 31 मार्च आएगी क्या? बता दो मुझे, प्रीमियम कितना था? 1 लाख। अब 1 लाख को अमोर्टाइज करना है कितने महीने में? पहले 3 महीने और अगले 3 महीने। तो बेटा इधर कितना कर देंगे? 50,000, और इधर कितना कर देंगे? 50,000। तुम मेरा भरोसा नहीं मानोगे, क्वेश्चन इतना फालतू आता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो आपको बोलना है इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 6 मंथ्स। सो 6 मंथ्स में पहले 3 महीने 1 साल में जा रहे, अगले 3 महीने नेक्स्ट ईयर में। सो विल जस्ट ट्रांसफर इन 3 मंथ्स। यस और नो? तो एक बार इसको लिख लेंगे, तो लिख लीजिए। एनी फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एनी foreign currency forward contract for hedging is that okay? So हम लिखेंगे treatment any foreign currency forward contract for what? Hedging is you have a risk and you are protecting yourself against the risk. So treatment क्या है? Amortize the premium on forward contract. तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्या है? in the bracket loss or any discount on forward contract or premium on forward contract or any discount on forward contract in the bracket क्या बोलेंगे? gain to P&L account over the period of contract, not 6 months, over the period of contract. Contract can be 6 months, 7 months, 2 months, 3 months. So the rule is what? You have to amortize it over the period of contract. तो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का तो कितने महीने में अमोर्टाइज करोगे? 6 महीने में। और अगर 3 महीने का तो कितने महीने में? 3 महीने में। इज दैट सिंपल? गुड। बट पहले मैंने क्या बोला? हेजिंग के लिए क्या होना चाहिए? एक्सपोजर। ये पहले समझना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन को पकड़ ही नहीं पाओगे। क्या होना चाहिए? एक्सपोजर मतलब आपकी कोई तो एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग है वो रहना चाहिए। मतलब कोई तो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल या फॉरेन करेंसी पेएबल। हैप्पी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, शील्ड कौन यूज करते हैं या हेजिंग कौन यूज करता है? जो गेम खेल रहा है, हाँ या नहीं? जो गेम खेल रहा है वो यूज कर रहा है। गेम मतलब जो रिस्क ले रहा है, जो तलवार है जिसके पास, दोनों के पास तलवार है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, एक और आदमी यूज कर रहा है। नो, तुम वापस झूठ बोल रहे हो। एक आदमी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला। उसको तलवारबाजी घंटा नहीं आती है, वो बढ़िया आदमी है, वो धंधा करना जानता है। उसको ये लगता है वॉर होने वाला है, तो किसका धंधा करेगा? किसका धंधा करेगा? शील्ड का। मतलब उसको तलवारबाजी कुछ नहीं आती, उसके घंटा कोई रिस्क नहीं है। वो क्यों डील कर रहा है? कि उसको लगता है रेट ऊपर जाने वाली है तो ढाल को खरीदने लगता है। तो वैसे ही कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है फॉरेन करेंसी में। जैसे आनंद भांगड़िया, कोई एक्सपोजर नहीं है फॉरेन करेंसी में, बट फिर भी मुझे लगता है कि डॉलर की रेट ऊपर जाएगी, तो मैं क्या करता हूं? डॉलर का फॉरवर्ड खरीद लेता हूं।
से यस, क्योंकि आगे चलकर उसको किसी और व्यक्ति को बेच दूंगा महंगे दाम पर। वापिस से सुनो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप फ्यूचर की रेट आज डिसाइड कर रखे हो। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैंने बैंक के साथ डील किया था कि 81 रुपीज में तुम मेरे को डॉलर बेचोगे, बराबर है, आगे चलकर डॉलर की रेट हो गई 90, बट मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, 81 वाला, कि मतलब बैंक को देना ही पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि बेटा इसको पैसा देना ही पड़ता है। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है 81 का, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, और अभी मार्केट रेट कितनी है डॉलर की, 90। तो बेटा जी किसी तो व्यक्ति को डॉलर चाहिए होगा, तो मैं उसको जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता हूं क्या? यस और नो? सो राजा बेटा जी आपको समझने का चाहिए कि अगर मेरा कोई रिस्क नहीं है, सो आई एम डूइंग इट फॉर व्हाट पर्पज? स्पेक्यूलेशन। कौन से पर्पज के लिए? स्पेक्यूलेशन का ट्रीटमेंट अलग है और इसका ट्रीटमेंट अलग है। तो बेटा जी पहले आपको क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हेजिंग है कि नहीं है, और हेजिंग है या नहीं है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? शुड यू हैव सम रिसीवेबल और पेएबल इन डॉलर, यस और नो? यस। अगर वो है तो आप क्या करोगे? एनी प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फॉरवर्ड विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर व्हाट? P&L अकाउंट ना, ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक ये लाइन याद नहीं हो जाती मैं आगे नहीं जाऊंगा। Any foreign currency forward contract for what? Hedging treatment. Amortize the premium on forward contract or any discount on forward contract to P&L account over the period of contract. एक बार इंग्लिश में बोल के बताओ। नहीं, any foreign contract, in any foreign currency forward contract for what? Hedging. Any premium on foreign currency exchange forward or discount on foreign currency exchange forward will be amortized over P&L account over the period of contract. क्या ये बात लिख पाएंगे क्या आप? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वो स्पेकुलेशन वाला नहीं बताया अभी तक, वो बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 34। सर आप डेरिवेटिव के पोर्शन करवा रहे हो ना सर? यस बेटा, बस ये वर्ड नहीं बोला कि ये डेरिवेटिव है। येलो का 1, आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या गर्मी होती है यार, शे मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं होती, तुम्हारी पढ़ने की इच्छा कैसे हो रही है? नहीं, पर पढ़ना पड़ेगा बेटा। पढ़ ले क्वेश्चन ये पहले। राव लिमिटेड purchased a plant for US dollar 1 lakh. Underline the word purchased a plant. सर पूरा लिखने दो। लिखा नहीं पिछला वाला? बक्सले यहां से। राव लिमिटेड परचेस्ड प्लांट फॉर US dollar 1 lakh. बेटा विल यू प्लीज अंडरलाइन द वर्ड परचेस्ड? क्या क्लिक हो रहा है? Is there a foreign currency exposure in my books? Yes. तभी हेजिंग हो सकती है। ओके गुड। फिर 3 महीने बाद पेमेंट करना है बेटा। 1 फरवरी से चालू होगा कार्यक्रम, और कितना 3 महीना उसमें चमन। कब खत्म होगा कार्यक्रम? 30 अप्रैल 2016 एंड 2016। सो बेटा जी 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च, और 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, और 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल। एग्रीड? 31 मार्च के पहले कितने महीने हो गए? 2, और उसके बाद में कितना? 1। आंसर बता दो इसका। प्रीमियम निकाल दो, और प्रीमियम को बोलो 2 महीना इस साल में और 1 महीना अगले साल में। दैट्स इट, यही आंसर इसका। तो चलो चेक करते बेटा जी। Company entered into forward contract for 3 months at 49.15. बेटा प्लीज हाईलाइट द वर्ड कंपनी entered into forward contract for 3 months. ये समझ में आया क्या? So बेटा what is the forward rate? Forward rate is 49.5. 15 ना? Okay. Exchange rate per dollar was 48.85. बेटा what is the spot rate? मतलब अगर उसी दिन खरीदा तो कितना आएगा? 48. अपने दिल से पूछ के मुझे बताओ, क्या इसमें
प्रॉफिट है कि लॉस है? मतलब ये इसमें एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहा है ना। आप अगर अभी पे करते तो कितने में करते? 48.85, बट आपको 3 महीने का आगे का कॉन्ट्रैक्ट कितने में मिला? 49.15। कैन यू गेट मी द डिफरेंस? 0.3. So 0.3 into 1 lakh. Beta, what is the total premium you have paid? 30,000. Agreed? अब अपने दिल से पूछ के ट्रीटमेंट बताओ मुझे, कितना फरवरी से मार्च में डालेंगे और कितना मार्च से अप्रैल में डालेंगे? सो कैन आई से इसमें 20,000 जाएगा और इसमें कितना? आर यू श्योर अबाउट इट? प्लीज चेक. इज दिस द आंसर? Hence 2 months loss would be 20,000. Yes or no? Loss to be recognized in 16, 17, 20,000. Rest 10,000 will be recognized in the following year. साहब मेरा काम है ना एकदम सिंपल है. मैं पहले क्या कर देता हूं, आपको ये समझा देता हूं कि आंसर कैसे निकलता है. लिखने का काम हम सेकंड पार्ट में करेंगे. तो बताओ क्या क्या करते हैं. पहले क्या चाहिए? जब भी आंसर चेक करोगे तो इसको पहले क्या चाहिए? आवाज नहीं आ रही है. फॉरेन करेंसी एक्सपोजर. आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा अगर फॉरेन करेंसी एक्सपोजर नहीं. अगर इधर इसने मशीन नहीं बाय करी होती, सिर्फ डॉलर बाय कर ली होती क्योंकि रेट ऊपर जा रही उसको ऐसा लगता, तो उस केस में यहां का कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आता. तो पहले चीज क्या चेक करोगे? फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है क्या. अगर एक्सपोजर है तो आपको 2 रेट निकालनी पड़ेगी, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट. फॉरवर्ड रेट निकालने का तरीका क्या है? एकदम इजी है. कब पैसे चाहिए? आज चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए? तो तुम्हारी फॉरवर्ड रेट आज के 3 महीने बाद की होगी, तो वो फॉरवर्ड रेट आई. स्पॉट रेट कौन सी? आज जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उस दिन की रेट, वो ही स्पॉट रेट. दोनों के बीच का फर्क देखो और आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. जैसे अगर मैं आज पे करता तो मुझे कितने रुपए में पे करना पड़ता? 48.85. बट मैं आगे पे करूंगा तो कितने में करना पड़ेगा? 49.15. सो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस. अब ये समझ में आया. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीड? कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? पर डॉलर कितने रुपए का प्रीमियम दे रहे? 30 पैसा. 30 पैसा, 30 पैसा. And what is the number of dollars I am owning? 1 lakh. So 1 lakh into 0.30. What is the total loss? 30,000. Now 30,000 would be amortized over the contract period. What is the contract period? 3 months. उसमें से current year में कितना है? 2 months. और अगले साल में कितना है? So I will transfer the loss for first 2 months. How much, my dear students? 20,000. And next 1 month, 10,000. Say yes. Is that clear? All right. So एक बार इसका आंसर लिखते एज पर AS 11 एज पर AS 11. भाई साहब यार बहुत भयानक गर्मी हो रही है यार. बारिश आ रही क्या? अरे हो गया भाई, तू इधर आकर खड़ा रहे, तेरे को पता चलेगा कि इधर कितनी गर्मी हो रही है. तो वहां ही बोला क्या करूं? तुम कब सीरियस होंगे रे लाइफ में? कब? मैंने बोला सीरियस नहीं होने का, बट जब गर्मी होती है ना तब थोड़ा सीरियस हो जाने का बेटा. लिखो एज पर AS 11. As per AS 11, okay, any foreign currency forward contract for hedging, any foreign currency forward contract for hedging, right? अरे यार इधर एक लिखना था, इधर एक एनी प्रीमियम, सॉरी नो, एनी प्रीमियम ऑन, सॉरी, एनी प्रीमियम ऑन फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग. ये लाइन पढ़ पाएंगे आप? लिख पाएंगे? बता दो एक बार. एनी प्रीमियम करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग, है इतना लिख देंगे. विल बी amortized over the period of contract. है
गुड गुड। अभी ये वाला जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये लिखना नहीं है आपको, एग्जाम में लिखना है तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये लिख लेते हैं। क्या हो बेटा? विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, थैंक्स बेटा। ओवर पी एंड एल अकाउंट, अब तो ठीक है। क्या तेरा? और ऐसा चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना बोलते पागल, कौन सी जगह पे कहा है? विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर पी एंड एल अकाउंट। यू आर राइट बेटा, है ना? अभी आगे लिखो, एज पर AS 11 as per AS 11 forward exchange contract means an agreement to exchange different currencies at a forward rate डन। क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे को ही मालूम है। एज पर AS 11 फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट व्हाट रेट? एट फॉरवर्ड रेट। अच्छा, ये एग्जाम में लिखना है, नॉट रिक्वायर्ड, ये ऑप्शनल है, बट ऊपर वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। यस, एज पर AS 11 प्रीमियम ऑन फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर पी एंड एल अकाउंट। लिख देंगे इतना। चलो अभी लिखते जाओ, लिखो फॉरवर्ड रेट, बोलो ना कितना है? 49.15। फिर दूसरा स्पॉट रेट, तो फॉरवर्ड रेट कौन सी तारीख की है बेटा पता है तुम्हें? कुछ गरीब बच्चों को ये रेट भी लगेगी, रेट दी नहीं है, ये डेट नहीं दी है, लिख देते हैं यार इन गरीब बच्चों के लिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई 2016 की रेट है, ये फॉरवर्ड रेट है, और ये रेट है 1/2/2016 की रेट है। सो ये है 48.85। कबूल है? दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 0.3। तो हम क्या लिख देंगे बेटा जी? प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट हाउ? फिर बेटा जी हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट $1 लाख, टोटल प्रीमियम 30,000। ओके, टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कितना डिटेल में लिख रहा हूं ना मैं। टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। सो हम लिखेंगे प्रीमियम अमोर्टाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16, I'll say 30,000 multiplied by 2/3, 20,000 बेटा। एंड बेटा जी बैलेंस टू बी अमोर्टाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड, बोलो 31st March 17 and it is 10,000। ये आंसर कैसे निकला? 30,000 माइनस 20,000। चलो एक बार कर लेते हैं इसको। कैसे लिखा है हमने? पहले क्या लिखा?
फॉरवर्ड रेट, फिर क्या लिखा, स्पॉट रेट, फिर हमने क्या किया, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का डिफरेंस निकाला, फिर क्या निकला, प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड, फिर हमने लिखा टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कितना महीना, 3 महीना, और आपको ऑफ कोर्स हमने ये भी लिखा अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितना है बेटा जी, 1 लाख। सो हमारा टोटल प्रीमियम कितना हुआ, 30,000। अब हमको उसको अमोर्टाइज करना है करंट ईयर में। करंट ईयर में महीने कितने, 2, फरवरी और मार्च, तो 2/3, एंड व्हाट इज द अमाउंट आई गॉट, 20,000, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर द अमाउंट ट्रांसफर्ड विल बी हाउ मच, 10,000। क्लियर? कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? चलो कूल, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, कुछ एरियाज ऑफ कंफ्यूजन होंगे, उसके बारे में ध्यान से सुनना। चलो मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेता हूं। बेटा पहले मैं बहुत गरीब था, ये जो कि हकीकत है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनते जाइए। ये इधर मैं सीए बना, इधर मेरी शादी हुई, ये स्पॉट रेट है मेरी। हंस मत बे पागल, सुन, इधर मेरी शादी हुई और ये स्पॉट रेट है। तो इस दिन मेरी शादी हो गई है, मैरिड। अब बेटा जी आगे चलते चलते मेरी स्पॉट रेट बढ़ती जा रही है, क्योंकि पैसा कमाए तो स्पॉट रेट बढ़ती जा रही है नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूं, इधर राइट आपको और एक आगे की स्पॉट रेट मिली, एंड देन यू हैव गॉट अनदर प्रपोजल। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड कंसिडर द डेट व्हेन यू गॉट मैरिड, और यू शुड कंसिडर द फ्यूचर। तो फंसोगे, फिर देख लेना कलेश होगा घर में। तुम, अरे तुम वो AS11 छोड़ो, तुम इधर बताओ मुझे, हो मेरी शादी पहले, अब आगे चलते चलते स्पॉट रेट और बढ़ गई, और मान लो ऐश्वर्या तैयार हो गई, क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए? नहीं, रुक जाना चाहिए। सर आप ये क्या समझा रहे हो? इतना समझ में आया कि नहीं आया कि भाई साहब रुक जाना चाहिए कि जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। तुम्हें पता है एग्जामिनर तुम्हारे साथ क्या गेम खेलेगा? मैं तुमको बताता हूं। वो बताएगा इस दिन ट्रांजैक्शन, बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। इस दिन ट्रांजैक्शन हुई, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 फरवरी 2023 को ट्रांजैक्शन हुई क्या नहीं हुई? हुई। फिर क्या हुआ बेटा जी, इधर बीच में आया 31 मार्च 23, और इधर आएगा 1 मई 2023। समझ में आया? अब आज के तारीख में आपका स्पॉट रेट था मान लो 82, और आज के तारीख में आपने फॉरवर्ड रेट डिसाइड किया, मान लेते 85। एग्रीड? मतलब 3 महीने बाद 85 की रेट है। से यस और नो? ये कब डिसाइड किया बेटा जी? टुडे। सारा का सारा प्रीमियम विल बी कैलकुलेटेड टुडे बेटा जी। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 31 मार्च की स्पॉट रेट देगा। ये टाइम पास है, इसको देखना भी नहीं। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको 31 मार्च की फॉरवर्ड रेट भी देगा। ये भी क्या है? टाइम पास है। देखो बेटा मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं प्लीज इसको फील करना। आपके पास फॉरवर्ड रेट 1 फरवरी के है कि नहीं है? आपके पास फॉरवर्ड रेट कौन सी तारीख के? 1 फरवरी के। बट बेटा जब 31 मार्च आएगा तो ऐसे भी तो लोग रहेंगे ना जिनको चाहिए होगा डॉलर 1 महीने बाद। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो बेटा जी फॉरवर्ड रेट तो हर दिन निकलती रहती है, यस और नो? तो इस दिन भी एक फॉरवर्ड रेट रहेगी। बट बेटा जी ध्यान से सुनना, आपको इन फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का कोई लेना देना नहीं है। आपका लॉस कितना है ये जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसी दिन डिसाइड हो गया। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है पता? क्या बहुत आसान रखना है। तो आपको पता चलना चाहिए कि लॉस कब डिसाइड हो गया? डे 1 को डिसाइड हो गया। आगे चलकर वो कोई भी रेट दे उसको आपको पूरी खुली आंखों से इग्नोर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाए तो तुम फंसोगे। तो अभी तक मैं ही सिखा रहा था मॉनिटरी आइटम विच रेट, क्लोजिंग रेट तुम लेते थे बैलेंस शीट के रेट और डालो। अब नहीं करने का है। तुम्हें जो लॉस निकालना है कौन सी तारीख को निकालना है? जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो उस दिन लॉस फ्रीज्ड। अब आगे चलकर उस लॉस में ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। आगे आपको सिर्फ क्या करना है? अमोर्टाइज। तो आगे की रेट ऊपर नीचे हो रही है तो पुरानी रेट को भूलना नहीं। पुरानी रेट के बेसिस पर ही आपका पूरा फंक्शनिंग होगा। इज दैट यस और नो? तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का है? आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले एंटर किया है ना? तो मुझे बताओ प्रीमियम लॉस डिस्काउंट कब निकालोगे? डे 1 को या बीच में? डे 1 को। आगे चलकर वो आपको फॉरवर्ड रेट और दूसरे स्पॉट रेट दे रहे, उसको कंसीडर करोगे क्या? नहीं, उसको खुली आंखों से इग्नोर करोगे क्योंकि उसके बेसिस पर लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। लॉस इज डिसाइडेड ऑन डे 1। हैप्पी? सीरियस छोड़िए, हैप्पी? गुड। सो कैन वी नाउ डू वन मोर क्वेश्चन? ब्रेक चाहिए? बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दे दूंगा मैं, बट सिलेबस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है।
और मैं खुद भी परेशान हूँ। चल छोड़ो, ले लो ब्रेक। यार मतलब कितने ब्रेक्स हो गए मतलब लेक्चर चालू नहीं करते उसके पहले तुम थके हुए रहते हैं। जाओ जाओ, ब्रेक टाइमिंग शुरू।